सीमेट 2026 में बहुत कम टाइम बाकी रह गया है और जैसा कि आप लोग जानते हो कि सीमेट में करीबन 20 क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पोर्शन से, मतलब पूरे 80 मार्क्स, राइट? तो अब स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को पढ़े कैसे? फॉर करंट अफेयर्स वी हैव क्रिएटेड अ 6 मंथ करंट अफेयर्स वीडियो, जिसके अंदर हमने एक ही वीडियो में लास्ट के 6 मंथ्स में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं, लाइक कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस वीडियो में बना के रख दिए हैं। यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। एंड एज ऑफ स्टैटिक जीके, अब स्टैटिक जीके का ऐसा है कि आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, जितना भी आप पढ़ो आप कभी खत्म नहीं कर सकते, बिकॉज द कोर्स इज रियली वास्ट, राइट? सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड दिस कॉम्प्रहेंसिव वीडियो फॉर यू, जिसके अंदर हमने करीबन 150 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीमेट के जितने भी स्टैटिक जीके रिलेटेड आए थे उन्हें हमने पुट करें। अदर देन दिस वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड नोट्स फॉर द important organizations and their headquarters, other than this important posts and position holders, वो सब हमने इस वीडियो में कवर किया, जिससे आपके मेजर पोर्शन जो है आपका ओवरऑल एरिया कवर हो जाए जो भी स्टैटिक जीके के अंदर रहता है, ठीक है? इसमें हमने उस तरीके से पढ़ा है कि हर एक आंसर का एक लॉजिक है। यू डोंट हैव टू डू रटाफिकेशन, यू कैन जस्ट मेमोराइज ऑल दिस आंसर्स बाय द लॉजिक। एंड या this is how you can ace your CMAT, because I'll be honest with you, you have to score really high for in CMAT for getting a good college, because 95 percentile के ऊपर ही आपको अच्छे कॉलेजेस से कॉल आने की चांसेस रहती है। सो फॉर दैट 1 mark, even 1 mark matters a lot, और यहाँ पे तो 80 मार्क्स का है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। All right, so let's start with our static GK revision. So, as part of the first section, we'll start with the major posts and the position holders. ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाते हैं प्रेसिडेंट, the Srimati Draupadi Murmu. She is the 15th president of India. Then vice president is CP Radhakrishnan, and then prime minister is Shri Narendra Modi ji. He is the 15th prime minister of India. ठीक है, then we come to judicial head. We have Chief Justice of India, Supreme Court, Justice Suryakant. He becomes a very important name because उनसे पहले अभी just recently इनका नॉमिनेशन हुआ था फॉर चीफ जस्टिस, एंड रिसेंटली वो गॉट अपॉइंटेड इन नवंबर 23। सो उनसे पहले थे BR गवाई, तो he is the recent appointment, and since Chief Justice of India is a very big position, so you should know his name, and it's a recent happening. Then Attorney General of India is R Venkatramani. Then Solicitor General of India is Tushar Mehta. Okay, then we have another important section, Union Cabinet Ministers. तो इसमें Minister of Defense is Rajnath Singh, Minister of Home Affairs and Minister of Cooperation is Amit Shah, Minister of Health and Welfare and Minister of Chemicals and Fertilizers is JP Nadda. Then Minister of External Affairs, we all know Dr. S. Jaishankar. Minister of Road Transport and Highways, it's Nitin Gadkari ji. Then Minister of Finance and Minister of Corporate Affairs is Nirmala Sitharaman. Then Minister of Agriculture and Farmers and Minister of Rural Development. He's also a very important name, Shivraj Singh Chauhan ji. Then Minister of Commerce and Industry, Piyush Goyal. Minister of Education, Dharmendra Pradhan. Minister of MSMEs is Chitan Ram Manji. Then Minister of Ports, Shipping and Waterways, it's Sarbananda Sonowal. Then Minister of Civil Aviation is Kinjarapu Ram Mohan Naidu. And finally, the Minister of Railways is Ashwini Rao and Ashwini Vaishnav. Right. So, ऐसे देखा जाए तो we have another 30 ministers, but यहाँ पे 13-14 नाम ही लिखे हैं हमने, because these are the most prominent names in the news. So it becomes important for you to go through it and memorize them, because questions might come from this section as well. Then we have parliamentary head. So Speaker, Rajya Sabha के speaker is CP Radhakrishnan, Vice President of India. So it becomes important in a way, like आपको पता होना चाहिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है देश का, वही बाय डिफॉल्ट स्पीकर भी होता है राज्यसभा का, राइट? अपर हाउस का। तो लेट्स से आगे जाके कोई और वाइस प्रेसिडेंट बनता है, तो देन ही बाय डिफॉल्ट बिकम्स द स्पीकर ऑफ राज्यसभा। देन डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा इज हरिवंश नारायण सिंह। लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी। देन लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी, ठीक है, एनडीए से, इट्स राज्यसभा में जेपी नड्डा, हु इज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. सो ही होल्ड्स टू important position. He also holds the leader of ruling party in Rajya Sabha. Then Speaker of Lok Sabha is Om Birla ji. Then leader of opposition from Lok Sabha is Rahul Gandhi ji. Then Chief Election Commissioner, we have Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. He is the 26th Chief Election Commissioner. Then we have Election Commissioners Vivek Joshi, Sukhbir Sandhu. All right. Then we have Armed Forces Head.
Supreme Commander of Indian Armed Forces, President Srimati Draupadi Murmu. Similarly, like the Vice President, President is also by default Supreme Commander. So आगे जाके कोई और president आता है, then he or she becomes directly by default Supreme Commander of Indian Armed Forces. Chief of Defense Staff, it's Lieutenant General Anil Chauhan. He's the second person to hold this position. उनसे पहले थे बिपिन रावत जी. ठीक है. Then Chief of Air Staff is Amarpreet Singh. Chief of Naval Staff is Dinesh Kumar Tripathi. Then Chief of Army Staff is Upendra Dwivedi ji. Okay. Another important section is head of scientific research organizations in India. There are many scientific research organizations, but we are just putting the names of the notable ones. Like chairman of ISRO. So पहले S Somnath ji the, and now Dr. V Narayanan आ गए हैं. Then chairman of Atomic Energy Commission A.K. Mohanty, director of Baba Atomic Research Center is Vivek Basin, and chairman Defense Research डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि डीआरडीओ है उनके समीर वी कामत. ओके. Head of sports organization, so chairman of ICC we all know Jay Shah. President of FIFA is Gianni Infantino. President of International Boxing Association Athletes Committee is Lavlina Borgohain. Lavlina Borgohain, as you might know, Tokyo 2020 Olympics में she won bronze for India in boxing. ठीक है, that's why she is the president of International Boxing Association Athletes Committee. Then we have President BCCI is Mithun Manhas. Now this is also a bit confusing because we might think that Saurav Ganguly was the president of BCCI, but no, the BCCI president is Mithun Manhas. Then test captain of BCCI is Shubman Gill. Head coach is Gautam Gambhir. President of Hockey India is Tipin Turkey. Then president of Indian Olympic Association is PT Usha. PT Usha, as you might know, she was the youngest Indian female sprinter of all time, and she was the first female to reach at any Olympics final. And she, participated in three Olympics: 1980, 1984, and 1988. So she is a prominent name, and she is the president of Indian Olympic Association. Then we have head of international organizations. Secretary General of United Nations is Antonio Guterres. He was the former Prime Minister of Portugal as well, and now currently holding position as Secretary General of United Nations. Then we have 14th President of World Bank is Ajay Banga. Then Director General of UNESCO is Audrey Azoulay of France. Then finally, the world's leading companies CEOs. So Google CEO Sundar Pichai, Apple Tim Cook, Microsoft CEO is Satya Nadella. Tata Sons Trust CEO is Natarajan Chandrasekaran Siddharth Sharma. Then TCS K Kritivasan. Infosys के हैं सलील पारेख. OpenAI CEO, as we all know, Sam Altman. SpaceX maybe we all know Elon Musk. YouTube CEO is Neil Mohan. Instagram CEO is Adam Mosseri. We might think Mark Zuckerberg, but no. Instagram CEO is Adam Mosseri. Our Facebook CEO is Mark Zuckerberg. X जो कि फॉर्मर ट्विटर, वी माइट थिंक कि एक्स के जो सीईओ है वो इलोन मस्क होंगे, बट नो, इट्स लिंडा याकरिनो. एंड देन फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णा मूर्ति. ऑलराइट. Okay, one more thing for you again, reminding you that the complete PDF of this question bank and static GK revision, notes, all is in the description. You can directly go and download it and revise it after this video. Other than this, we also have a WhatsApp channel where we provide interview tips or job openings, or we conduct GD sessions there. Everything we do it in that can help you ace your interview for placement or job switching. So you can find that link of that WhatsApp group in the description. So yeah, you can join it for free, and let's get ahead with our questions. We have another 200 questions of static GK, so let's get started with that. We are at our first question. Which country is the largest net raw sugar exporter in the world? Options are India, Cuba, China, Brazil. So you might think कि क्यूबा को हम
sugar bowl of the world बोलते हैं, right? तो answer would be Cuba, but it's completely wrong because currently Brazil has overtaken Cuba as a net sugar exporter, because there have been mismanagement and a lot of corruptions in Cuba, and Brazil on the other hand has increased its infrastructure in a way to grow as the largest net raw sugar exporter. So the answer is Brazil. Then the Tropic of Cancer passes through how many Indian states? Is it 6, 7, 8, or 9? So the answer is 8. The Tropic of Cancer passes through 8 Indian states, that are Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura, and Mizoram. Then we have who is known as the father of Indian Constitution. The answer is B.R. Ambedkar ji. B.R. Ambedkar ji was the chairman of drafting committee that drafted the constitution, और उन्होंने constitution draft किया था 29th November 1949 में. Okay, which river is known as the sorrow of Bengal? The answer is दामोदर रिवर. एक्चुअली इसका रीजन ये है कि दामोदर रिवर का जब भी रिवर में थोड़ा भी राइज ऑफ वाटर होता है, देन इट स्टार्ट्स फ्लडिंग मेनी सिटीज ऑफ बंगाल, जिससे काफी इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज होता है, काफी कैजुअलिटीज भी होती है. इसकी वजह से दामोदर रिवर को सोरो ऑफ बंगाल बोला जाता है. देन वी हैव द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? USA, Ireland, UK, Canada. So the thing is, that our constitution was not the completely न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. हमने काफ़ी चीज़ें अलग अलग जगह से बोरो करी थी, लाइक सम गुड थिंग्स फ्रॉम USA, आयरलैंड, UK, कैनेडा. तो व्हाट वी हैव बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने कहाँ से बोरो किया था? तो एक्चुअली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द फंडामेंटल गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, और ये हमने बोरो की थी आयरलैंड से. यूएसए से हमने, जैसे हमने प्रियम्बल बोरो किया था. यूके से भी हमने कुछ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोरो किया था. फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर से बोरो की थी. विच विटामिन इज नॉन एज द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन? Vitamin, is it vitamin A, vitamin B, vitamin D, or vitamin E? So the answer is vitamin E, which is also known as tocopherol. It is very crucial for normal reproduction, and its deficiency leads to sterility. Okay, which is the longest river in the world? Answer is Nile River. It's in UK. Then the headquarters of UNESCO is Rome, Geneva, Paris, or New York. So the headquarters of UNESCO, UNESCO की full form है United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, is located in Paris. Okay, which Indian state has the longest coastline? The longest coastline is Gujarat, around 2300 kilometers. Who wrote the book Discovery of India? It was written by पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे. ही रोट दिस वाइल ही वाज इम्प्रिजन्ड बाय द ब्रिटिशर्स एट अहमदनगर फोर्ट. ठीक है, इन्होंने ये करीबन 1942 से 1946 के अराउंड लिखी थी. एंड इस बुक में मेजरली ही वांटेड टू ऑफर अ कॉम्प्रहेंसिव लुक एट इंडियाज हिस्ट्री, फिलोसॉफी एंड कल्चर. विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट? इट्स मार्स. द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज टाइगर. Which metal is the best conductor of electricity? Is it copper, aluminium, gold, or silver? So the answer is silver. Okay, so silver में क्या काफी free electrons होते हैं, and it helps conduct the electricity at the best. But हम सिल्वर की वायर्स यूज नहीं करते बिकॉज सिल्वर इज वेरी एक्सपेंसिव. सो आफ्टर सिल्वर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉपर. इसलिए आपने कॉपर की काफी वायर्स देखी होगी. बट ओवरऑल द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिल्वर. देन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ Lok Sabha only, Rajya Sabha only, Lok Sabha and Rajya Sabha, or President, Lok Sabha and Rajya Sabha? Now this is a bit confusing, right? When we think about the Indian Parliament, we think that okay, it might be consisting of just the lower house and the upper house, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. But no, President is also a part of Indian Parliament, like it's a separate body altogether in this question, right? So President is also an integral part of Parliament, though he is not the member, but he summons and prorogues sessions and gives assent to bills. So there are three parts of Indian Parliament: President, Lok Sabha, and Rajya Sabha. Which Mughal emperor built the Taj Mahal? It's easy, Shah Jahan. Which gas is most abundant in Earth's atmosphere? This is a bit scientific questions, right? So science is also being asked in static. So the answer of this question is nitrogen. So nitrogen consists around 78% of the total Earth's atmosphere. Then ऑक्सीजन आता है 21%. फिर आर्गन आता है 0.94%. आर्गन इज इनर्ट गैस, आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में. देन फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत कम मात्रा होती है, इट्स अराउंड 0.04% ओनली. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया was established in 1930, 1935, 1947, and 1950. So the answer is 1935. The HQ or the headquarters of Reserve Bank is in Mumbai. Which Indian classical dance form
originated in Kerala. This is Bharatnatyam, Kathak, कथकली और ओडिसी. सो भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का है, ठीक है. कथक इज इन नॉर्थ, ओडिसी इज इन ओडिशा. सो कथकली इज द इंडियन डांस फॉर्म originated in Kerala, which is the smallest bone in the human body. Femur, stapes, ulna और radius. So answer is stapes. Stapes मतलब ये कान के अंदर एक छोटा सा बोन होता है, ठीक है, मिडल ईयर में. Then the national emblem of India is adapted from the lion capital of Ashoka at Sarnath. ठीक है, वो देखे होंगे ना अपने 3 शेर होते हैं एम्बलम में, वही है. Which ocean is the largest in the world? It's easily Pacific Ocean. Who was the first president of India? President की बात कर रहे हैं. Rajendra Prasad was the first president of India, and Sarvepalli Radhakrishnan was the first vice president of India. Which country gifted the Statue of Liberty to the USA? This is also a very tricky question, right? So we might not know about this. So since this question came in CMAT previous years, so it's become imperative for us to learn this. So the country that gifted the Statue of Liberty to the USA was France. So France gifted the Statue of Liberty to the United States as a symbol of friendship and shared ideals of liberty. Actually, they both, partnered together during the American Revolution, right? So that's why France gifted the Statue of Liberty to the USA. Then the chemical symbol Na stands for sodium. Actually, Na stands for natrium, जो कि लैटिन नेम है सोडियम का, इसलिए सोडियम को Na बुलाते हैं. Then, which is the highest civilian award in India? It's Bharat Ratna. Which latitude passes through the middle of India? अब latitude longitude आपको पता होंगे कि latitude is the horizontal line and longitude is the vertical line, imaginary lines that pass through the earth. So कौन सा latitude passes through the middle of India? ठीक है, हमने first second question भी वही था. It's Tropic of Cancer. The Planning Commission of India was replaced by Finance Commission, Niti Aayog, Election Commission, or UPSC. The answer is Niti Aayog. Niti Aayog or National Institution for Transforming India has replaced Planning Commission. Actually, it came into practice by Prime Minister Narendra Modi ji in 2015. Which instrument is used to measure atmospheric pressure? So thermometer is used for temperature, hygrometer is used to measure the humidity, anemometer is used to measure wind speed. So barometer is used to measure the atmospheric pressure. So answer is barometer. Then which is the oldest mountain range in India? The answer is Aravalli range. The Constitution of India came into effect on, so ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पहले ही बताया था, लाइक B.R. अम्बेडकर वाले क्वेश्चन के अंदर. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो अडॉप्शन डेट तो थी नवंबर 26 1949, ठीक है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं. बट ये इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950. अब सर रीजन ये था, बन तो गया था 26 नवंबर 1949 में, बट हम 1930s के अराउंड 26 जनवरी में हमने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था 1930s में 26 जनवरी को. तो उसी को उसी को याद करते हुए, उसी को सम्मान देते हुए, मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. ठीक है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर 1949, सी ऑप्शन, बट when it came into effect it was 26 January 1950. Which Indian state is known as the land of rising sun? is Arunachal Pradesh, because it's the easternmost state of India और सबसे पहले rise यहीं होता है सन. The fundamental duties were added to the Indian constitution by which amendment? So this is very important. Like amendments याद नहीं होते हैं, पर पॉलिटी के अंदर कुछ amendments काफी important बन जाते हैं. ठीक है, तो it is one of those amendment, 42nd amendment. So 42nd amendment जो 1976 में आया था, this is also known as the mini constitution. 42nd amendment, it's very important, right? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं 42nd amendment 1976. इसमें क्या हुआ था, काफी चेंजेस लाए थे, काफी इंपॉर्टेंट नए रूल्स, नई पॉलिसीज, काफी नए आर्टिकल्स ऐड हुए थे. दैट्स व्हाई 42nd amendment is known as the मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. एंड फंडामेंटल ड्यूटीज भी इसी में ऐड हुई थी. 11 फंडामेंटल ड्यूटीज होती है. फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर, रशिया से लिए थे. तो 42nd amendment is the right. Planet has the maximum number of moons? Is it Jupiter, Saturn, Uranus, or Neptune? The answer is Saturn. It has around 274 moons. ठीक है, natural moons. Actually, Jupiter is the largest, but Saturn has the most number of moons. ठीक है, the famous Ajanta and Ellora caves are located in. The answer is Maharashtra. Now, which Indian city is known as the Silicon Valley of India? Silicon Valley of India, it's an easy answer. The answer is बेंगलुरु. ठीक है, बेंगलुरु को इसलिए बोला जाता है क्योंकि बेंगलुरु इज ऑल्सो नोन एज द
हब फॉर आईटी, एंड यहाँ पे काफ़ी स्टार्टअप्स बूम होते हैं और काफ़ी आर&डी वगैरह में, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. Which gas is used in fire extinguisher? So the answer is nitrogen. Sorry, the answer is carbon dioxide. So the carbon dioxide basically helps in extinguishing fire because आपने कभी देखा होगा like oxygen is required for fire, right? But fire बुझाने के लिए carbon dioxide is the best gas. The currency of Japan is A won, B yuan, C yen, या D dollar. So the answer is yen. Who was the first women prime minister of India? So the first women prime minister of India was इंदिरा गांधी जी. सो प्राइम मिनिस्टर तो इंदिरा गांधी थे. फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज प्रतिभा पाटिल जी. ठीक है. विच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशियन. सो पैसिफिक ओशियन में एक मारियाना ट्रेंच है, वहां पे एक चैलेंजर डीप करके एक डीपेस्ट पॉइंट है जिसका डेप्थ है 11 किलोमीटर. ठीक है, 11,000 मीटर्स के बराबर. तो ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है अर्थ का, उससे भी ज्यादा डीपेस्ट, लाइक हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ इज माउंट एवरेस्ट, तो वो अराउंड करीबन 9 किलोमीटर का होता है. बट पैसिफिक ओशन में जो मारियाना ट्रेंच है, इट्स अराउंड 11 किलोमीटर डीप. राइट, इट्स द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. एंड इसमें मरीना ट्रांच में भी चैलेंजर डीप. विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन? द आंसर इज आयरन. आयरन का सिंबल है Fe. सो आयरन हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन एंड ब्लड एंड हीमोग्लोबिन. राइट. विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज नेताजी? इजी क्वेश्चन. सुभाष चंद्र बोस. द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन. सो बैटल ऑफ प्लासी ना एक बहुत ही निर्णायक फाइट थी, बहुत निर्णायक वॉर थी. इसमें नवाब ऑफ बंगाल एंड ब्रिटिश आर्मी के बीच में फाइट हुई थी, एंड ब्रिटिश आर्मी केम आउट एज विक्टोरियस. ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, तो इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल. इसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपने एक्सपांशन काफी ज्यादा किया था, लाइक बंगाल भी उनके हाथ में आ गया था. एंड लाइक हमारी हमारी तरफ से पहली बार हम हारे थे ब्रिटिश आर्मी से. तो बैटल ऑफ प्लासी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस, राइट. तो इट हैपन इन 1757 एंड British East India Company won that battle. Which is the smallest planet in solar system? The answer is Mercury. Which Indian state is the largest producer of wheat? The answer is Uttar Pradesh. और largest producer of rice पूछा गया तो आपको आंसर देना है वेस्ट बंगाल. The World Health Organization was established in the answer is 1948. और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर से जेनीवा स्विट्जरलैंड में. विच डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद आंध्र प्रदेश? So, आंध्र प्रदेश में कौन सा डांस फॉर्म है? तो जैसे पहले मोहिनी अट्टम देख लेते हैं. मोहिनी अट्टम केरला का है, मणिपुरी मणिपुर का है, सत्रिया आसम का है, तो कुचिपुड़ी इज द आंध्र प्रदेश. द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज, अगेन इजी क्वेश्चन, लोटस. विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? लिवर, हार्ट, लंग्स, किडनीज? आंसर इज किडनीज. Who appoints the chief election commissioner of India? So the answer of this question is president of India. So president का जो मेजर काम होता है वो सबको अपॉइंट करना ही होता है, राइट. सो डिसीजन मेकिंग पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, बट प्रेसिडेंट इज द पर्सन हु अपॉइंट्स पीपल ऑन स्पेसिफिक पोजीशंस. तो अपॉइंट्स का जहां पे भी आ गया तो 99% टाइम इट्स प्रेसिडेंट ओनली. विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन? तो इसका आंसर हो गया नॉर्वे. ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि नॉर्वे में जब समर्स होती है तब 24 आवर्स देयर इज सन, राइट. वहां पे सन कभी अस्त नहीं होता है. यू वॉन्ट सी सन इज इनविजिबल, लाइक नाइट के टाइम पे भी सन वुड बी देयर, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लैंड ऑफ मिडनाइट सन. द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच एज? Is it iron, bronze, stone age or copper age? The answer is bronze age. तो इन चारों एजेस का क्रोनोलॉजी इस तरीके से, जो स्टोन एज था सबसे पहले आया था, ठीक है, फिर कॉपर एज, फिर ब्रोंज एज, देन आयरन एज. विच इंडियन रिवर फ्लोज वेस्ट वर्ड? ठीक है, सारी रिवर्स जो इनमें है वो सारी ईस्ट वर्ड फ्लो होती है, मतलब इधर से इधर होती है. एक रिवर जो इधर से इधर होती है वेस्ट वर्ड फ्लो होती है. द आंसर इज नर्मदा. नर्मदा इज बेसिकली मेजरली फ्लोज इन मध्य प्रदेश ओनली. तो आंसर इज नर्मदा. और गोदावरी को याद रखना दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण गंगा. विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स? सो फंडामेंटल राइट्स पहली बार हमने लिया यूएसए से. I told you, right? We borrowed many good things from different constitutions around the world. The fundamental rights, we took it from USA.
अब इसका जो है आंसर है वो है पार्ट 3, आर्टिकल 12 से 35 तक सारे मतलब फंडामेंटल राइट्स होते हैं, 12 टू 35। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस, इजी विटामिन ए। विच इंडियन सैटेलाइट वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, तो हमने आर्यभट्ट लॉन्च करी थी विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। तो ये अराउंड 1975 में भी लॉन्च इट वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, आर्यभट्ट। द नेशनल गेम ऑफ इंडिया एज पर गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन इज, वी माइट थिंक इट्स हॉकी बट नो, देयर इज नो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नेशनल गेम ऑफ इंडिया। विच मुगल रूलर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम्स होती है रैंकिंग सिस्टम होती है जो मिलिट्री के अंदर होती है, ठीक है। कौन सा मुगल ने मनसबदारी मतलब रैंकिंग यानी मनसब, मनसब में क्या होता है कि आप आपकी रैंक्स होती है एंड ऑन द बेसिस ऑफ रैंक आपको उतनी लैंड मिलती है, ठीक है। तो 10 से 5,000 तक या 50,000 तक की रैंक्स होती है, ठीक है। और जितने आप रैंक में हायर होते हैं उतनी आपकी लैंड्स उतनी पावर होती है। तो मनसबदारी सिस्टम जिससे काफी एक ये एक अच्छा सिस्टम था जिससे काफी मिलिट्री पर्सनल्स ने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए काफी पॉजिटिव स्टेप्स उठाए थे। तो मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, ठीक है। विच ब्लड ग्रुप इज नॉन एज यूनिवर्सल डोनर, द आंसर इज O negative. The Indian national flag was designed by Pingali Venkaiah. He was the person who was along with Mahatma Gandhi during Quit India movement and many other moments. तो इन्होंने ही इंडियन नेशनल फ्लैग डिजाइन किया था। विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, ठीक है। हाईएस्ट डैम इन इंडिया कौन सा है? टेहरी डैम। ये टेहरी डैम उत्तराखंड का एक डैम है, ठीक है। टेहरी डैम उत्तराखंड का एक डैम है और ये भागीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है। ओके, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, इजी, उत्तर प्रदेश। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, दिस इज अ बिट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया पूछा गया है, तो वी माइट थिंक इट माइट बी माउंट एवरेस्ट, बट नो, माउंट एवरेस्ट बेसिकली इंडिया में ही नहीं आता है, नेपाल चाइना में भी काफी मतलब वहां पे भी आता है। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कंचनजंगा। ये सिक्किम स्टेट में लोकेटेड है और इट्स अराउंड 8,500 मीटर्स लॉन्ग, हाई, and Mount Everest is around 8,800 meters. Right, so Kanchenjunga is the highest mountain peak in India. The right to education was made a fundamental right by which amendment? Right to education मतलब ये इसमें क्या हुआ था कि 6 से 14 साल के बच्चों को मैंडेटरी एजुकेशन प्रोवाइड करना कंपलसरी हो गया था एंड इट शुड बी प्रोवाइडेड फ्री, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। सो राइट टू एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट। इससे पहले ये फंडामेंटल ड्यूटी था, तो फंडामेंटल ड्यूटी इज नॉट एनफोर्स्ड टू द कोर्ट, लाइक इट शुड बी देयर, बट फंडामेंटल राइट इज समथिंग दैट शुड बी डन बाय गवर्नमेंट बाय एनी मीन्स, ठीक है। आपके अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो यू कैन गो टू कोर्ट, बट अगर आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज वायलेट हो रही है तो यू कांट गो टू कोर्ट, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी से फंडामेंटल राइट में कब इसको इन्वॉल्व किया गया राइट टू एजुकेशन को? इट वाज 86th अमेंडमेंट, ठीक है। अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट के बारे में आपको बताया था, इट्स मीनिंग कंस्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पर इसका आंसर है 86th अमेंडमेंट। विच इंडियन सिटी इज नॉन एज द सिटी ऑफ लेक्स? इट्स भोपाल। The national bird of India is peacock. Who was the first Governor General of Independent India? Governor General of Independent India, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो गवर्नर जनरल कौन बना? ठीक है, अभी तक केवल 2 ही गवर्नर जनरल रहे इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर। पहले बहुत गवर्नर जनरल्स रह चुके हैं, बट इंडिपेंडेंट इंडिया में केवल 2 गवर्नर जनरल रहे थे, क्योंकि उसके बाद गवर्नर जनरल की पोजीशन को चेंज करके प्रेसिडेंट में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो पहले थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। ये 1947 से 1948 तक रहे एंड देन उसके बाद सी राजगोपालाचारी जी बन गए थे एंड ही वाज द फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर, इंडियन गवर्नर जनरल, क्योंकि उसके बाद गवर्नर जनरल नाम हटा के प्रेसिडेंट रख दिया गया था। 1950 में प्रेसिडेंट बोलने लगे एंड देन राजेंद्र प्रसाद जी बिकेम द प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज लॉर्ड माउंटबेटन। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन? The answer is citric acid. Which Indian classical language is oldest? It's Tamil. The Lok Sabha has a maximum strength of 550, जिसमें से 530 comes from states and 20 comes from union territories. Though currently it has 543 elected members representing constituencies, मतलब 543 MPs है currently, पर लोकसभा की maximum strength है 550. Which is the largest desert in India, in world? It's Sahara Desert in Africa. And then Bhakra Nangal Dam is built on which river? This is also important. It's Satluj. Which freedom fighter gave the slogan "Do or die"? महात्मा गांधी जी। ये कब दिया था ना डू और डाई? इसका पहले तो इसका मतलब होता है कि मतलब अभी यू हैव द चांस,
you have to do anything to get your freedom from Britishers, even if you have to sacrifice yourself, but you have to do it now. ये किया था 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, जब महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था 1942 में अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ही गेव द स्लोगन ईदर डू और डाई. ठीक है, you have to, even if you have to sacrifice yourself for the freedom, you have to do it and do it now. Which planet is known for its prominent rings? आंसर इज सैटर्न. सैटर्न के अराउंड हमने रिंग्स देखी होगी. इट्स नॉट रिंग्स, इट्स बेसिकली आइस ओनली. तो आइस के पार्टिकल्स होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं और इतने ज्यादा होते हैं, इट अपीयर्स एज अ कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ रिंग. विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? इज गोवा. द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज एट जिनीवा, स्विट्जरलैंड. ये ज्यादातर जो यूएन बॉडीज के हेडक्वार्टर्स होते हैं वो यूएस और स्विट्जरलैंड में ही होते हैं. ठीक है. विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन एग्जीक्यूटिव्स? यूनियन एग्जीक्यूटिव्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या आ जाता है? जैसे आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर. तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए कौन कौन से आर्टिकल्स कौन से पार्ट में आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के लिए? तो इट कम्स अंडर पार्ट 5. पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिकली आर्टिकल्स 52 से 78 तक डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, कवरिंग द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल, outlining their powers, functions and appointments, right? Then we have the chemical formula of washing soda. Chemical formula of washing soda is Na2CO3.10H2O. इसका मतलब हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. डेकाहाइड्रेट मतलब डेका मीन्स 10, H2O हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स. तो Na2CO3 10H2O. ठीक है. देन विच इंडियन मोन्यूमेंट इज ऑल्सो नोन एज द टेम्पल ऑफ डॉन? इंडियन मोन्यूमेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है. इसका आंसर है कोणार्क सन टेम्पल. कोणार्क सन टेम्पल एक्चुअली ये आप देख लो कि इसको सूर्य भगवान के लिए पहली बात ये टेम्पल है, एंड इसको इस तरीके से बनाया गया है कि जो इस कोणार्क सन टेम्पल के डोर है ना, उसके ऊपर सन की पहली लाइट पड़े. ठीक है. इट इज स्ट्रक्चर्ड इन दैट वे, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कोणार्क सन टेम्पल. हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज? इट वाज रविंद्रनाथ टैगोर जी. ठीक है. रविंद्रनाथ टैगोर जी won in 1913 for his collection of poems, especially Gitanjali. So he won in Nobel Prize in Literature for his poems Gitanjali, making him the first non-European, ठीक है, first non-European and first Asian to receive the prestigious award. He is also known as Gurudev. ठीक है. इनका nickname है Gurudev and is the author of India's national anthem. ठीक है. Which organelle is known as the powerhouse of the cell? Is the most easy question. Mitochondria. Then the famous blue pottery. The famous blue pottery is associated with which Indian city? The answer is Jaipur. So blue pottery क्या है ना कि unlike any other form of pottery, it is made without clay. बाकी सारी potteries में clay वगैरह यूज होती है. It is not made with clay. It is made with the quartz जो होता है ना, stone powder या फिर powdered glass, उनसे बनाई जाती है. So it's not made out of clay. That's why it is so famous. Which Indian river is the longest? ओके. विच इंडियन रिवर इज द लॉन्गेस्ट? इसका मतलब ये कि कौन सी रिवर जो इंडिया में फ्लो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट इज गंगा. अदरवाइज ब्रह्मपुत्र इज मच लॉन्गर देन गंगा, बट ब्रह्मपुत्र का ज्यादातर जो पार्ट है वो चाइना में रहता है. ठीक है. तो इस हिसाब से इंडिया में सबसे बड़ी रिवर कौन सी? गंगा. अदरवाइज गंगा से बड़ी ब्रह्मपुत्र ओवरऑल देखा जाए तो. प्लानिंग ऑफ 5 years प्लान्स इन इंडिया वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल? आंसर इज सोवियत मॉडल. 5 year प्लान्स 1951 से स्टार्ट हुए थे. मतलब हर 5 साल में हमें क्या क्या अचीव करना है उसका एक मॉडल बनाया जाता था, एंड गवर्नमेंट हैज टू परस्यू दैट मॉडल. ठीक है. हर 5 साल में नए नए 5 ईयर मॉडल्स प्लान्स बनते थे. तो ये हमने सोवियत यूनियन से उठाया था. विच ब्लड कंपोनेंट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग का इजी प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं इनको. द गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन मुंबई, अरेबियन सी के तट पे. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? ठीक है. फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. इफ it is being violated, you can go to court. That's why it is fundamental right. तो ये कौन सा आर्टिकल आता है इसके? इसका आंसर है आर्टिकल 17, right? Which Indian dance form is performed in a circular pattern? Kathak, Garba, Odissi, Manipur. So we know Garba is performed in a circular pattern. Which metal is liquid at room temperature? Mercury Hg. इसका melting point काफी लो होता है, around -38 डिग्री सेल्सियस, इसलिए थर्मोमीटर्स में यूज होता है. ठीक है. मर्क्यूरी थर्मोमीटर आपने सुना होगा. तो मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब आप उसको हाथ में पकड़ोगे पिघला हुआ रहता है वो. ठीक है. द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज बनियान. ठीक है. हु प्रिसाइड्स ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? इज इट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर ऑफ लोकसभा? सो हु प्रिसाइड्स ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा. ठीक है. स्पीकर ऑफ लोकसभा जब दोनों
पार्लियामेंट की बॉडीज जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा जब एक साथ बैठती है उसको ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं। उसको हेड कौन होता है? उसका स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, ही प्रेसिड्स ओवर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट called by the president under article 108 to resolve any legislative deadlocks। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो उनकी एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा टेक्स होगा। ठीक है, विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम? इसका आंसर हो जाएगा हमारे उत्तर प्रदेश। ठीक है, द टर्म जीरो आर इन पार्लियामेंट रिफर्स टू, ठीक है, ये पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। द टर्म जीरो आर क्या होता है कि इट इज अ टाइम आफ्टर क्वेश्चन आर। ठीक है, तो ये होता है टाइम आफ्टर क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर क्या होता है? पहले तो ये होता है कि अ, मतलब जीरो आवर में क्या होता है कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेज अर्जेंट और इंपॉर्टेंट इश्यूज विदाउट प्रायर नोटिस। ठीक है, अलाउइंग इमीडिएट डिस्कशन ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये 12 बजे के अराउंड स्टार्ट होता है। तो इसमें काफी क्वेश्चंस उठाए जाते हैं जो पहले नोटिस नहीं देते, दे डोंट प्रोवाइड नोटिस फॉर दिस क्वेश्चंस, एंड देन these questions are, you know, addressing towards some things that are happening in country and that require immediate discussion। तो 0 आवर्स में सारे के सारे ये मिलके क्वेश्चन करते हैं। तो आफ्टर क्वेश्चन आर at 12 p.m. in noon, 0 hours start। We are at question number 93. So, which country has the largest written constitution? So, the options are USA, UK, India, or France. So, the largest written constitution is of India. It is a very comprehensive document with around 146,000 words, numerous articles, parts, and schedules, making it significantly longer and more specific than most other national constitutions, including the US constitutions. ठीक है? The famous Golconda Fort is located in Telangana, which vitamin is also known as ascorbic acid। ठीक है, तो इसका आंसर पहले बता देता हूँ। आंसर इज विटामिन सी। तो विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, विटामिन बी को बोलते हैं कोबालामीन। कोबालामीन बिकॉज इसमें कोबाल्ट होता है, विटामिन B12। सो ए इज नोन एज रेटिनॉल, B12 is known as cobalamin, and D is known as calciferol। Then question number 96 is which Indian leader is popularly known as Lok Nayak? Lok Nayak as in people's leader। So it Jay Prakash Narayan, जिनको JP भी बोलते थे, JP Narayan। So he was an Indian independence activist, socialist, and political leader। He is best remembered for leading the opposition against Prime Minister Indira Gandhi in the 1970s। Okay, the longest dam in India is, the answer of this question is Hirakud Dam। So Hirakud Dam is the longest one. It's located on the Mahanadi River in Odisha। ठीक है, इसकी total length around 25.8 kilometers है। Which planet rotates from east to west? ठीक है, इसमें जैसे ऑप्शन में केवल एक ही है, बट असली में दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो ईस्ट टू वेस्ट जैसे क्लॉकवाइज होते हैं ना, या इसको रेट्रोग्रेड रोटेशन भी बोलते हैं, उस रोटेशन फॉर्म में घूमते हैं। तो इसके अंदर तो आंसर हो गया वीनस। बाकी यूरेनस इज ऑल्सो अ प्लैनेट दैट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब वेस्ट टू ईस्ट। बस वीनस और यूरेनस ही ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। इसका रीजन थोड़ा अटपटा है। लाइक ऐसा बोलते हैं कि वीनस के ऊपर बहुत सालों पहले एक एस्टेरॉइड आके टकरा गया, उससे उसका रोटेशनल फॉर्म चेंज हो गया। राइट, बिफोर इट वाज also rotating from west to east, but after the asteroid collided, it started rotating from east to west। Okay, the famous painting Mona Lisa was painted by, we all know, Leonardo da Vinci। Leonardo da Vinci was an Italian painter, और ऐसा कहा जाता है कि 1503 से 1519 के बीच में ये पेंटिंग बनाई थी। ही टुक अ लॉट ऑफ टाइम, अराउंड 1519 में जाके कंप्लीट हुई थी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक अलग असेंबली बनी थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस। विच इंडियन रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा? ये मैं आपको पहले ही बताया था। दक्षिण गंगा बोलते हैं गोदावरी को, क्योंकि ये भी लंबी ही है, साउथ में सबसे लंबी गोदावरी है, एंड इट इज ऑल्सो अ सैक्रेड रिवर लाइक गंगा, इसलिए गोदावरी को दक्षिण गंगा बोलते हैं। और काफ़ी लाइफ सेविंग है ये, बिकॉज so many states get their water requirement fulfilled by Godavari। Which instrument measures wind speed? We have already told it's anemometer। Then the largest gland in the human body is pancreas, thyroid, liver, और pituitary। तो इसका आंसर हो जाएगा लिवर। ठीक है, सबसे पहले तो समझते हैं ग्लैंड क्या होता है। लाइक
Why liver is the largest gland? So gland is any of the small parts inside your body that produce chemical substances for your body to use, ठीक है, जिसमें कोई भी chemical substance release कर रही है वो चीज़, तो liver is considered a gland because it also produces and secretes substances like bile, proteins, and hormones, and that's how it is the largest gland. Who was the first Indian women government of any state? ठीक है, सरोजिनी नायडू। यूपी में 1947 से 1949 तक शी वॉज द विमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट यूपी। ठीक है, गवर्नर तो अभी भी होते हैं, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। गवर्नर इज इक्वल टू प्रेसिडेंट एंड चीफ मिनिस्टर इज इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर। Which Indian city is known as the Pink City? It's Jaipur. The symbol AG stands for argon, gold, silver या aluminium. तो इसका आंसर है सिल्वर। सिल्वर इसलिए आर्जेंटम, एक्चुअली सिल्वर को लैटिन में आर्जेंटम बोलते हैं, इसलिए इसका सिंबल है एजी, आर्जेंटम। विच मुगल रूलर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी? अकबर, बाबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले तो। असली में दो मुगल रूलर्स ने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। तो पहली लिखी थी बाबर ने, बाबरनामा, एंड उसके बाद जहांगीर, उन्होंने लिखी थी तुजुक जहांगीरी। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया इज ऑस्ट्रेलिया। Which Indian state is the largest producer of coffee? So answer of this is Karnataka. Indian state Karnataka is the largest producer of coffee, and in world it is Brazil. Then the Rajya Sabha is also known as upper house. ठीक है, लोक सभा is known as lower house. Which is the hardest natural substance? It's diamond. Which Indian classical dance form originates from Manipur? It's Manipuri. Satriya is Assam. Kathak is in UP and northern part. Odissi is Odisha. Who appoints the Chief Justice of India? Chief Justice of India is appointed by President of India. Chief Justice अभी कौन है? अभी बताया था स्टार्टिंग में, जस्टिस सूर्यकांत। उससे उनसे पहले थे BR गवाई। तो जस्टिस सूर्यकांत was appointed on 23rd November. Please remember this. Which gas causes acid rain? ठीक है, विच कॉज गैस कॉजेज एसिड रेन? इज सल्फर डाइऑक्साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एसिड रेन? होता है कि जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं ना, तो उनके पॉल्यूटेंट्स या फिर मतलब पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं ना, ये एक तरीके से रिएक्ट कर जाते हैं वाटर, ऑक्सीजन और दूसरे केमिकल्स से जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, और फिर वो अर्थ पे फॉल करते हैं एज एसिड रेन। ठीक है, ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं इकोसिस्टम और स्ट्रक्चर्स के लिए। विच इंडियन पोर्ट इज द ओल्डेस्ट पोर्ट? It's Chennai. The famous Sun Temple at Konark is located in, it is Odisha. Okay. Then which part of the Indian Constitution deals with the judiciary? तो जुडिशरी मतलब जजेस को किस टाइप से क्या काम करना चाहिए, उनके आर्टिकल्स कौन से पार्ट में लिखे हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन विच नोबेल प्राइज कैटेगरी वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट? एक्चुअली नोबेल प्राइज स्टार्ट हुए थे 1901 से बाय एल्फ्रेड नोबल। एल्फ्रेड नोबल इन्होंने स्टार्ट किए थे, और इन्होंने एक्चुअली ही वाज आल्सो द पर्सन हु इन्वेंटेड डायनामाइट। और एक और चीज़ याद रखना, इसका आंसर पहले बता देता हूँ, इट्स फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स सबसे पहले दिया गया था। ऐसा याद रखना कि नोबेल प्राइज बहुत अलग अलग फील्ड से मिलते हैं, पीस हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारे नोबेल प्राइज एक जगह मिलते हैं, जैसे स्टॉकहोम है स्वीडन में। ठीक है, बस एक नोबेल प्राइज है जो अलग जगह मिलता है, दैट इज पीस। सारे नोबेल प्राइज लाइक इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, साइंस में जितने भी हो गए, फिलोसॉफी, सब मिलते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में। केवल पीस का जो नोबेल प्राइज है, इट इज अवॉर्डेड इन ओस्लो। ओस्लो जो नॉर्वे में एक जगह। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि नोबेल प्राइज नवंबर दिसंबर में ही मिले थे 2025 के, तो इट्स बिकम्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी? तो इसके ऑप्शन है असम, वेस्ट बंगाल, केरला या तमिलनाडु। तो आंसर है असम। वर्ल्ड में चाइना इज लीडिंग। द फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान वाज गिवन बाय लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, देन विच इंडियन स्टेट वाज फॉर्म्ड फर्स्ट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिक? मतलब इंडिपेंडेंस के बाद कौन सा ऐसा स्टेट है जो लिंग्विस्टिक बेसिक पे सबसे पहले बना था? उसके बाद काफ़ी अलग अलग स्टेट्स बन गए थे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सिंस इंडिया हैज सो मेनी लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट्स बने थे। तो सबसे पहला स्टेट बना था
आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1953 में फॉर तेलुगु स्पीकर्स, फिर उसका तमिलनाडु और फिर केरला बन गया, मलयालम, एंड फॉर कन्नड़ इट्स कर्नाटका। द स्ट्रेट ऑफ हर्मुज कनेक्ट्स, सबसे पहले तो स्ट्रेट क्या होता है? तो स्ट्रेट इज नो एनी नेचुरली फॉर्म्ड narrow waterway that connects two larger bodies of water like seas or oceans with the land masses on either side। ठीक है, दो बड़े लैंड मासेस के बीच में एक छोटी सी वाटरवे जा रहा होता है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, लैंड मास, बड़े लैंड मासेस को। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्शियन गल्फ एंड अरेबियन सी। मतलब ये स्ट्रेट जो है ये आप मान लो बिटवीन ईरान एंड ओमान, उनके बीच में है ये। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन सा आर्टिकल जो प्रेसिडेंट को बताता है कि कैसे काम करना, उनकी पावर, इनके अपॉइंटमेंट पावर से, ठीक है, वो है आर्टिकल 52। विच इंडियन साइंटिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930? सीवी रमन, आपने सुना होगा रमन इफेक्ट। सो रमन इफेक्ट बेसिकली एक फिनोमेना वेयर लाइट चेंजेस वेवलेंथ व्हेन स्कैटर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल एंड इट वाज अ ब्रेक थ्रू इन लाइट स्कैटरिंग रिसर्च। तो सीवी रमन, 1930, रमन इफेक्ट, नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। The chemical symbol K stands for पोटेशियम। पोटेशियम को के नाम से आपने सुना होगा। इन पीरियोडिक टेबल इट इज रिटन एज के बिकॉज के स्टैंड्स फॉर कैलियम। कैलियम इज द लैटिन वर्ड फॉर पोटेशियम। विच कंट्री इज नोन एज द शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड? इट्स क्यूबा। विच इंडियन फ्रीडम मूवमेंट स्टार्टेड विद द दांडी मार्च? दांडी मार्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 के अराउंड गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसमें उन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट किया। दे इट वाज अगेंस्ट द अनइवन सॉल्ट टैक्स बाय ब्रिटिशर्स। तो उसके अगेंस्ट में गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930 एंड अंडर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दांडी मार्च वाज देयर। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज वुलर लेक। ये फ्रेश वाटर लेक है जम्मू एंड कश्मीर में। Which part of the Indian constitution deals with emergency provisions? So emergency provisions basically part 18 में आते हैं, सी ऑप्शन सी, फ्रॉम आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360। बेसिकली इमरजेंसी प्रोविजंस होते क्या है ना, ये आपने सुना होगा, इंदिरा गांधी ऑल्सो इम्पोज द इमरजेंसी ड्यूरिंग हर टेन्योर। तो इसमें क्या होता है, इट ग्रांट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैंडल सीवियर क्राइसिस लाइक वॉर, इंटरनल रेबेलियन और फाइनेंशियल कोलैप्स, which allows temporary suspension of normal rules and centralization of power, basically to safeguard the nation's security, unity, and stability. Which Indian city is known as the Manchester of India? Manchester of India, Manchester basically जगह है यूरोप में जहाँ टेक्सटाइल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा टेक्सटाइल का बिजनेस होता है। तो इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है? अहमदाबाद। विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी? तो इसका आंसर हो जाएगा पैंक्रियाज। इंसुलिन हेल्प्स इन शुगर रेगुलेशन। द फेमस रेड फोर्ट was built by, now this is a bit confusing, इसका आंसर है शाहजहां। 1638 से 1648 के बीच में बना था रेड फोर्ट एंड 1648 में कंप्लीट हो गया था। Now, question number 133 is which gas is commonly known as laughing gas? Is it nitric oxide, nitrous oxide, carbon monoxide, or sulfur dioxide? So the answer of this question is nitrous oxide. The headquarters of the International Court of Justice (ICJ) is at The Hague. Hague is the capital city of Netherlands. Which Indian state has the maximum number of districts? Answer is Uttar Pradesh. Which Indian classical music system is prevalent in North India? It is Hindustani. Then the chemical formula of common salt is NaCl, sodium chloride. Who was the first speaker of the Lok Sabha? So the current speaker of Lok Sabha is Om Birla. The first speaker of Lok Sabha was G.V. Mavlankar ji. Right? Then which is the longest railway platform in India? Now this might be a bit confusing because unlike until recently Gorakhpur junction was the longest railway platform, but now it's Hubli junction। ठीक है, हुबली जंक्शन जो कर्नाटका में है इज स्ट्रेच ओवर 1507 मीटर्स, नियरली 1.5 किलोमीटर। दिस हैज सरपास गोरखपुर जंक्शन जो पहले 1366 मीटर्स का था। तो करंटली हुबली जंक्शन, इट्स इंपॉर्टेंट,
ठीक है, गोरखपुर जंक्शन वाज प्रीवियसली द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड. नाउ हुबली जंक्शन अराउंड 1.5 किलोमीटर, हुबली जंक्शन इन कर्नाटका. विच मेटल इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन. गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिससे जिससे एक मेटल को आयरन या स्टील के ऊपर कोट किया जाता है ताकि वो रस्टिंग होने से बचा सके. ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस इज जिंक. Then the Indian National Congress was founded in, answer is 1885. Which Indian river forms the largest delta in world? सबसे पहले डेल्टा क्या होता है ना, डेल्टा एक फर्टाइल और फैन शेप्ड लैंड फॉर्म होता है जो एक रिवर के माउथ पे बनता है. ठीक है, ये एक वेटलैंड बनाता है. ठीक है, जैसे ये एक फैन टाइप हो गया. ठीक है, यहाँ पे कुछ रिवर्स आके मिलती है और यहाँ पे एक वेटलैंड बनाती है जो काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच होता है. ठीक है, जो काफ़ी वाइल्ड लाइफ को हैबिटाट भी प्रोवाइड करता है, सॉइल भी फर्टाइल करता है. ठीक है, और कोस्ट को भी बचाता है. तो ये एक न्यूट्रिएंट रिच वेटलैंड होता है डेल्टा. तो कौन सा इंडियन रिवर फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? इट्स गंगा ब्रह्मपुत्र. विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? ठीक है, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया इज केरला. देन विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स? रिकेट्स क्या होता है ना कि बच्चों में होता है, इट लीड्स टू सॉफ्ट बोन्स. तो बोन्स के रिगार्डिंग कुछ भी आता है तो वी पुट विटामिन डी एज आंसर. ठीक है, रिकेट्स caused by the deficiency of vitamin D. Right? Who was the first Indian women chief minister? Women chief minister की बात करी जा रही है, सुचिता कृपलानी. She was the chief minister of Uttar Pradesh. The Indian standard time is based on which longitude? ठीक है, it is based on 82 degree 30 eastern. Which Indian state has the highest literacy rate? It is Kerala. Which Indian festival is known as the Festival of Harvest? This might be confusing. You might think Onam और Pongal तो होते हैं, but is Diwali a festival of harvest? So yes, Diwali is the festival of harvest. Hence, the answer is all of the above. Because Diwali also has deep roots as a harvest festival because it is celebrated at the end of a cropping season, especially the autumn harvest, जिसको खरीफ बोलते हैं. ठीक है, तो farmers give thanks for abundance by worshipping goddess Lakshmi. तो Diwali is also a festival of harvest. The fundamental rights in India inspired by the constitution of, ये आपको पहले ही बताया था. द आंसर इज यूएसए. विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ जॉय? इट्स कोलकाता. देन विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स? इट इज मध्य प्रदेश. सो मध्य प्रदेश में अराउंड 11 नेशनल पार्क्स है. इट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स. मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोलते हैं बिकॉज सबसे ज्यादा टाइगर्स वहां पाए जाते हैं. द फेमस विक्टोरिया मेमोरियल इज लोकेटेड इन कोलकाता. ठीक है, कोलकाता में. Then who is known as the father of green revolution in India? So the answer of this question is MS Swaminathan. Now what was green revolution? Basically green revolution में क्या हुआ था कि MS Swaminathan introduced high yielding varieties of rice and wheat which transformed India from a food deficient nation to self sufficient, saving millions of starvation. उन्होंने काफी high yielding varieties लाए थे because उससे पहले क्या होता है कि अराउंड 1960s में थिंग्स वर नॉट गोइंग वेल. ठीक है, फॉर फार्मर्स क्रॉप्स वर नॉट sustaining enough. So what MS Swaminathan did, he did some research, he brought some good high yielding crops and hence green revolution started and India becomes self sufficient. ठीक है, उसके पहले काफी दिक्कत होती है. नाउ उसके बाद इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग एज वेल. सो दैट्स हाउ वंडरफुल द ग्रीन रिवोल्यूशन वाज. विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड? इट्स कनाडा. ठीक है, कनाडा की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है. कोस्ट लाइन समझ रहे हो ना, कोस्ट जो ओशन से सटी हुई है. Okay, the Parliament of India can legislate on state subjects during both B and C, national emergency and president's rule. Which gas is used in filling balloons? So अभी तो helium use होता है. ठीक है, why? Because helium is light and non-flammable noble gas, which makes balloons float, making it a much safer choice for parties and celebration. उसके पहले हाइड्रोजन यूज टू गेट यूज, बट इसकी क्या फ्लैमेबिलिटी काफ़ी एक्सट्रीम होती है जिससे आग काफ़ी आसानी से पकड़ लेता था. तो उसकी वजह से हीलियम हैज़ नाउ रिप्लेस्ड हाइड्रोजन एज अ गैस फॉर फिलिंग बलून्स. The famous book Arthashastra was written by Chanakya.
विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर? तो इसका आंसर हो गया केरला। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है रबर? इट्स थाईलैंड। विच कॉन्टिनेंट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज? इट्स अफ्रीका। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हैड हाउ मेनी आर्टिकल्स? ठीक है। अब क्या होता है ना कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना ही था, जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट ही हुआ था बाय बी आर अम्बेडकर एंड हिज टीम ड्राफ्टिंग कमेटी, तब अराउंड 395 आर्टिकल्स थे। जो अभी कितने हैं पता है? इट्स अराउंड 448 राइट नाउ। व्हाई? अमेंडमेंट्स आपको बताया था कि कितने अमेंडमेंट्स हुए। 42nd अमेंडमेंट इज नॉन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडमेंट्स के थ्रू आर्टिकल्स ऐड होते जा रहे थे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। तो अभी करीबन 448 अमेंडमेंट्स, और कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं अभी तक? 106 अमेंडमेंट्स हुए हैं, जिसकी वजह से 395 से 448 अमेंडमेंट्स, 395 से 448 आर्टिकल्स बन चुके हैं। ओके, जवारा इज डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? जो जवारा है मध्य प्रदेश की। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स ब्रेन? ब्रेन को कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? सेरिबेलम। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वाज लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद यूएसएसआर। 1975 में आर्यभट्ट यूएसएसआर की हेल्प से भेजी गई थी स्पेस में। विच इंडियन रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज? ओके, तो इस गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र सब हिमालय से निकलती, बट गोदावरी डजंट। गोदावरी बेसिकली साउथ में ब्रह्मगिरी हिल्स है, जो त्र्यंबकेश्वर है ना, नासिक डिस्ट्रिक्ट के वहां पे, लेकिन महाराष्ट्र, वहां से ओरिजिनेट होती है। त्र्यंबकेश्वर इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स। The Rajya Sabha can have a maximum number of 250 members. Which vitamin is synthesized in the human body with sunlight? Easy, vitamin D. Which city, Indian city is known as the city of pearls? It's Hyderabad. The famous Sachi Stupa is based in Madhya Pradesh. Okay, which Indian state is the largest producer of cotton? Largest producer of cotton. The answer is Gujarat. और वर्ल्ड में जब बोला जाए तो चाइना, चाइना इज ऑन नंबर 1 एंड इंडिया नंबर 2। सो इंडिया में तो गुजरात इज टॉप, बट वर्ल्ड में चाइना इज टॉप ऑन एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट? बॉक्साइट एक और होती है, वहां से मेटल निकलता है, तो आंसर इज एल्यूमिनियम। सो आंसर इज एल्यूमिनियम। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एच जे कानिया। एंड फर्स्ट चीफ जस्टिस तो एच जे कानिया हो गए। अभी कौन है? सूर्यकांत, राइट। बाबा याद दिला रहा हूँ क्योंकि ये रिसेंट अपॉइंटमेंट था। विच इंडियन रिवर इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश? नर्मदा। ठीक है, बताया था नर्मदा ओरिजिनेट्स एंड मेजरली ये मध्य प्रदेश में ही फ्लो होती है। ठीक है, इट्स अ लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश बिकॉज बहुत सारे गांव, ठीक है, उसके अराउंड ही थ्राइव करते हैं, राइट। ओके, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, प्लीज सब्सक्राइब टू प्लेसमेंट पल्स for more such content. It motivates us a lot to keep coming up with such content. Okay, then the headquarters of the World Bank कहाँ पे लोकेटेड है? तो हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी के अंदर लोकेटेड। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर वॉज पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी? पंजाब केसरी मतलब पंजाबी लायन, लायन ऑफ पंजाब। सो ही वॉज none other than लाला लाजपत राय। सो लाला लाजपत राय कौन थे? ही वॉज एन इंडियन फाइटर, ठीक है। ही वॉज अ प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर, ऑथर एंड अ की मेंबर ऑफ लाल बाल पाल। पता हो ना लाल बाल पाल? लाला लाजपत राय, बचेंद्री पाल एंड बाल गंगाधर तिलक। तो लाल बाल पाल, तो they were the three pillars of Indian independence movement. Which is the smallest unit of life? Its cell. The term bicameral legislature refers to two houses. Bicameral, right? मतलब upper house and a lower house. Which Indian state shares the longest international border or boundary? It's West Bengal with Bangladesh. The world's highest waterfall by total height is Angel Falls. ये वेनेजुएला में, it's around 979 meters, around 1 kilometer, right? Which Indian city is known as the city of temples? It's Bhubaneswar in Odisha. The motto of the Indian national emblem is, क्या मोटो होगा इसका? सत्यमेव जयदेव। इसका मतलब हो गया ट्रूथ अलोंग अलोन ट्रायम्स। ठीक है, इंग्लिश के अंदर सत्यमेव जयते। सो या दीज वर द ऑल क्वेश्चंस। नाउ वी जस्ट क्विकली गो अहेड विद आवर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट international organizations headquarters. We'll just quickly walk through it. So United Nation organization न्यूयॉर्क में, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड भी न्यूयॉर्क में है। देन यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड भी न्यूयॉर्क में है। यूएन विमेन भी न्यूयॉर्क में है। आईएमएफ
वॉशिंगटन डीसी, वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन डीसी, फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, दिस इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस भी जेनीवा में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी जेनीवा में, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जेनीवा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जेनीवा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन भी जेनीवा में। ठीक है, देन यूनेस्को पेरिस में आ जाता है, ये हमने क्वेश्चन कवर किया था। OECD पेरिस में आ जाता है, UNIDO वियना में आ जाता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वो भी वियना में आ जाती है, और ओपेक, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज भी वियना में आ जाता है, राइट। बहुत सारे जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स जेनीवा स्विट्जरलैंड में इसलिए होता है क्योंकि स्विट्जरलैंड हैज ऑलवेज बीन अ न्यूट्रल कंट्री, किसी भी वॉर में वो कभी नहीं गई, दैट्स व्हाई इट्स कंसिडर्ड अ मोस्ट स्टेबल, मच स्टेबल कंट्री, that's why most of the organizations headquarters are in Geneva. So yeah, this is all from Placement Pulse. Thank you for sticking till the end. Hope this complete session was much more valuable and knowledgeable for you guys. The complete link of the PDF would be in the description, along with the WhatsApp group link that you can join. It's free. We'll be sharing many interview tips and everything. So yeah, subscribe to Placement Pulse for more content, and best of luck for exam. Thank you so much.